Good morning, students. Today we discuss about the next part as the protein synthesis. Protein synthesis most of time on the some of the smallest issue which can be asked for the 1 marks. Sometimes short note on protein synthesis as the basic idea is the 2 marks, sometimes 3 marks, but basically it is asked for the 4 marks. But not asked as a complete protein synthesis. There may be protein synthesis which can be divided into 2 parts of a process, one who called as the transcription and another one who called the translation. So transcription which may be asked for the 4 marks in a detailed description, as well as the translation is asked for the 4 marks in a detailed description. So first we have to start it as the protein synthesis. So in previous class we have to know that protein is the building block of every living organism, as well as protein is so much essential biomolecules which can be modified itself into the hormones, enzymes, as well as the various types of the proteins which are most necessary for the growth of our body. So, how to carry the protein synthesis? There may be asked a 1 mark question. What are the central dogma for the protein synthesis? Central dogma, it means there may be central word is related to so much important, and dogma is related to processing or the criteria. यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस में बी द मेन क्राइटेरिया फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस. सो व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया इन प्रोटीन सिंथेसिस? So there may be first, DNA itself may be participated in only and only the protein synthesis. In previous we have to know that the protein synthesis of an DNA is a catalytic function. So DNA which can be undergo a process known as to be the transcription. In transcription, there may be formation of an RNase. But RNase which can be is of 3 types called the mRNA, rRNA and the tRNA, which are described detailed in previous class. Then RNase, then further going under a next one processes is called the translation, and then finally formation of an protein molecule. मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि डीएनए पहले अपने आप में अपनी ही कॉम्प्लीमेंट्री बेस की कॉपी कराता है. उस कॉपी को आरएनए कहा जाता है और उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, ऐसी एक प्रोसेस जिसमें एक स्क्रिप्ट, एक लंबी लिस्ट ट्रांसफर होती है फ्रॉम डीएनए एज इन द फॉर्म ऑफ द आरएनएज. लेकिन यहाँ आरएनएज नाम से नहीं बनते, तो जिस समय में जो आरएनए रिस्पॉन्सिबल है या बनाया जाना चाहिए उस आरएनए को बनाया जाता है, जिसमें से कभी इसमें एमआरएनए बनाया जाएगा, कभी आरआरएनए और टीआरएनए. बट देयर में बी मच मोर इसेंशियल आरएनए फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस इज द एमआरएनए. इस वजह से यहाँ पर हमने ऐसी साइन लगाई है कि कहा जाता है कि प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है तो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में सबसे पहले एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए फिर ट्रांसलेशन में जाएगा. एमआरएनए में जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग आई है डीएनए से वो ट्रांसलेट करेगी, अपने आप को बदलेगी, बदलते समय प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाया जाएगा. प्रोटीन मॉलिक्यूल कैसे बनता है? तो देयर में बी जॉइनिंग ऑफ एन नंबर ऑफ द अमीनो एसिड इन अ लॉन्ग चेन. कहा जाता है कि प्रोटीन जब बनता है तो प्रोटीन कैसे बनता है? तो प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड अपने आप में एक दूसरे के बाद एक लॉन्ग चेन में जुड़ना शुरू हो जाते हैं. तो कितनी कंटेंट में कितनी अमीनो एसिड जोड़ना है ये डिपेंड करता है और एट दैट टाइम ऑफ द बायोमोलिकुलर रिएक्शन, कि जो बायोमोलिकुलर रिएक्शन हमारे शरीर में चल रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी लंबी लेंथ ऑफ द अमीनो एसिड की चेन बनाना है, जो बन के पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा. तो वो जो एक लॉन्ग चेन है जिसे प्रोटीन मॉलिक्यूल कहा जाएगा या उसे ही पॉलीपेप्टाइड चेन कहा जाएगा. ओके, सो देयर में बी इन यूकैरियोट्स only and only follows as the transcription for the protein synthesis. So in transcription, DNA only undergo a process as the transcription and formation of an RNase, but RNase did not reversely synthesize the DNA. इस यूकैरियोट्स में अगर हम देखते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन एक यूनिडायरेक्शन में फॉलो होता है, जहां से डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में आरएनएज बनाता है, पर यह आरएनएज उल्टा डीएनए को जन्म नहीं देता. हमेशा आरएनएज अपने आप में इस तरीके से ट्रांसलेशन में ही जाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस करेगा इन यूकैरियोट्स. 1 mark क्वेश्चन. बट
In some of the retrovirus and the ribovirus, there is criteria is reverse. वहाँ criteria reverse होता है, उल्टा होता है. इस वजह से कहा जाता है कि कुछ ऐसे रिट्रोवायरस और राइबोवायरस में 1 मार्क क्वेश्चन और एमसीक्यू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन फॉलो किया जाता है, जिसमें डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में पहले आरएनएस बनाता है, पर यह आरएनएस उल्टा ट्रांसक्रिप्शन शो करता है और खुद से ट्रांसलेशन ना करते हुए, प्रोटीन सिंथेसिस ना करते हुए डीएनए को जन्म देता है. सो दैट मे बी प्रोसेस इज कॉल्ड एज द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, and such type of process only and only may be carried in a retrovirus as well as a ribovirus. प्रोटीन सिंथेसिस समझने के लिए सबसे पहले हमारी कुछ ऐसी बेसिक आइडियाज क्लियर करनी पड़ेगी. तो बेसिक आइडियाज क्या है? ऑन mRNA the sequence of nitrogenous bases is called mRNA language. जैसे हमने कहा है कि यहाँ पर सेंट्रल डोग्मा के तहत डीएनए ट्रांसक्रिप्शन में जाएगा तो आरएनएस बनाएगा, पर अगर प्रोटीन सिंथेसिस करना है या प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाना है तो मे भी उसके लिए सबसे पहले एमआरएनए बनाया जाएगा. तो एमआरएनए कैसे बनता है? तो डीएनए जो है अपनी कॉम्प्लीमेंट्री चेन ऑफ नाइट्रोजिनस बेसेस बनाता है, जिसे एमआरएनए कहेंगे. अब एमआरएनए के ऊपर जो एक सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजिनस बेसेस है उसे क्या कहा जाएगा? सो ऑन एमआरएनए द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजिनस बेसेस इज mRNA लैंग्वेज. उसे कहा जाएगा mRNA लैंग्वेज, या अदरवाइज उसी का दूसरा नाम होगा जेनेटिक कोड, जो किस स्वरूप का होगा? इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन. हम पढ़ चुके हैं कि mRNA पर जो नाइट्रोजन बेसेस की एक खास कतार होती है, सीक्वेंस होती है, जिनमें से तीन नाइट्रोजन बेस अपने आप में सीक्वेंस में एक यूनिट बनाते हैं, जिसे कोडॉन कहा जाता है, जो 3 का होता है. इस वजह से इसे ट्रिपलेट कोडॉन कहा जाता है. अब ये ट्रिपलेट कोडॉन क्या करता है? तो अ ट्रिपलेट कोडॉन स्पेसिफाई पर्टिकुलर अमीनो एसिड. हमेशा एक ट्रिपलेट कोडॉन एक ही पर्टिकुलर अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है, दर्शाता है. जो ट्रिपलेट कोडॉन आगे आएगा उस अनुसार वही बिल्कुल पर्टिकुलर अमीनो एसिड एक लॉन्ग चेन में जोड़ा जाएगा, पिरोता जाएगा, अमीनो एसिड की कतार बनाता जाएगा. तो मे भी जैसे ही अमीनो एसिड की कतार बनाने के बाद एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बन गया, हम जिस समय बोलेंगे तो वो जो उसका क्रमांक होगा अमीनो एसिड का, वो अकॉर्डिंग टू mRNA ट्रिपलेट कोडॉन होगा. सो सबसे पहले in living organisms we have to know that there may be presence of 20 amino acids are responsible for synthesis of the protein. हर कोई हमारे इस अर्थ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो अपने शरीर में प्रोटीन एज द बायोमोलिक्यूल अपनी ही शरीर में फ्रॉम द डीएनए से कंट्रोल करके बनाता है, या फिर प्रोटीन सिंथेसाइज किया जाता है बाय कंट्रोलिंग द डीएनए, तो उसमें उस प्रोटीन को बनाने के लिए हमारे शरीर में 20 अमीनो एसिड्स भी बनाए जाते हैं. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो 20 अमीनो एसिड्स क्या है. सो देयर में बी 20 अमीनो एसिड. आस्क फॉर समटाइम्स 2 मार्क्स और द 3 मार्क्स. फिनिलैलेनाइन जो दर्शाता है शॉर्टली PHE से, ल्यूसिन LUE से, आइसोल्यूसिन ILE से, मिथ्योनिन MET से, वैलिन is VAL, serine SER, proline PRO, threonine THR, alanine ALA, tyrosine TYR, histidine HIS, glutamine GLN, asparagine ASN, glutamic acid GLU, cysteine SCYS, tryptophan TRP, arginine ARG, ग्लाइसिन GLY, एस्पार्टिक एसिड ASP, लाइसिन LYS. इस तरीके से हमारे शरीर में कंपल्शन में 20 अमीनो एसिड्स बनाई जाती है या पाई जाती है. नाउ अर्लियर एज द डिस्कवरी in some of the bacteria in some of the bodies of living organisms on a depend on the diet of the selenium, there may be sometimes found as the 21st amino acid as the selenocysteine. यह हर किसी के शरीर में नहीं होता. जो कोई बैक्टीरिया और जो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सेलेनियम नाम से ऐसा एक ग्रेडियंट अपनी खाने में अगर ले लेता है फूड इंटेक में, तो ही उसके शरीर में ये 21st नाम का जो सेलेनोसिस्टीन है ये अमीनो एसिड बनाया जाता है. अदरवाइज हर किसी लिविंग बींग में सिर्फ और सिर्फ 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं. और यही 20 अमीनो एसिड अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस,
अपने आप में कतार में जुड़ते चले जाते और एक खास तरह की लॉन्ग चेन बनाते जिसे पॉलीपेप्टाइड चेन या प्रोटीन मॉलिक्यूल कहा जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल हम ऐसा बोल सकते हैं कि फिनिलएलानाइन शायद 5 जुड़ रहे हैं, ल्यूसीन शायद 3 जुड़ रहे, आइसोल्यूसिन बहुत नेसेसरी है तो शायद ये 50 जुड़ रहे, मिथ्योनिन शुरुआत करता है सबसे पहले प्रोटीन की, शायद ये शुरुआत और बीच बीच में ऐसे कई बार जोड़ा जाता है तो मे बी ये 100-200 जुड़ते जा रहे, वैलिन 3 जुड़ते जा रहे। यानी कंसिडरेशन में ऐसा कहा जाता है कि पूरे 20 अमीनो एसिड इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इन 20 में से कौन सी अमीनो एसिड कितनी बार इस्तेमाल करना है, कितनी बार जुड़ना है, विच इज डिपेंड ऑन द ट्रिपलेट कोडॉन विच आर प्रेजेंट ऑन mRNA। ओके, और एक बेसिक आइडिया, वाई कोडॉन इज इन अ ट्रिपलेट। ये हमने कहा है कि mRNA पर जो भी नाइट्रोजनस बेसिस की सीक्वेंस होती है वो हमेशा ट्रिपलेट कोडॉन में होती है, या जो एक सीक्वेंस होती है जो 3-3 में बट जाती है जिसे कोडॉन कहते हैं, और कोडॉन हर एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करता है। ये हमेशा ट्रिपलेट में ही क्यों होता है, 3-3 नाइट्रोजनस बेसिस में ही क्यों होता है। इफ वन नाइट्रोजन बेस स्पेसिफाई वन अमीनो एसिड, देन अगर एक नाइट्रोजन बेस सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को प्रेजेंट करता तो हमें पता है कि हमारे पास सिर्फ एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, बस ऐसे ही 4, या अदरवाइज थाइमिन की रिप्लेसमेंट में यूरासिल, ऐसे ही 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। और एक ही अमीनो एसिड को अगर स्पेसिफाई करेगा तो कहा जाता है कि सिर्फ 4 यूनिट बनेंगे। सो कंसिडरेशन में 4:1, सो 4। सो यहाँ एक कोडॉन अगर कहा गया तो जिसे सिंगलेट कोडॉन नाम दिया जाएगा, जो सिर्फ 20 में से सिर्फ 4 अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करेगा। तो जो बचे हुए 16 अमीनो एसिड है उसके बारे में क्या, उसको कौन जोड़ेगा, उनको कौन स्पेसिफाई करेगा, उन्हें कौन डिनोट करेगा, और किस तरीके से प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाने के लिए उनको भी इनकी कतार में जोड़ेगा जो 4 जुड़ रहे हैं, ये क्वेश्चन है। सो एक यहाँ पर समस्या है कि एक नाइट्रोजन बेस एक कोडॉन नहीं बना सकता। चलो दूसरी कंडीशन, अगर इफ 2 नाइट्रोजन बेसेस स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड, यानी 2 नाइट्रोजन बेस मिलके अभी एक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई कर रहे, मे बी कंसिडरेशन AG या GC या CT या मे बी AU या मे बी CU, इस तरीके से। तो 2 नाइट्रोजन बेस मिलके अगर एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं तो यहाँ दर्शाया गया है कि 2 का 1 यूनिट, ऐसे 4 नाइट्रोजनस बेसिस के कितने यूनिट, तो कंसिडरेशन में 4 × 4 16, 2 का 1 बन रहा है तो जिसे डबलेट कोडॉन्स कहा जाएगा, जो सिर्फ 16 अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करेंगे। अभी भी 20 अमीनो एसिड में से 4 अमीनो एसिड बाकी, जिनको कौन स्पेसिफाई करेगा। अगर ये 4 अमीनो एसिड हमारी ग्रोथ के लिए मच मोर इसेंशियल रहे तो क्या हम ऐसे ही मे बी एबनॉर्मल ग्रोथ में रह जाएंगे उन डेफिशिएंसी ऑफ 4 अमीनो एसिड्स की वजह से? नो, ये भी एक समस्या थी। So maybe there is basic reason is if 3 nitrogenous base specify one particular amino acid, then the consideration 3 is united from the 4 nitrogenous bases. So 4 × 4 × 4, 4 4s are 16, 16 4s are 64। अब हमारे पास 3 के 64, जिसे 3 का 1 है तो ट्रिपलेट कोडॉन कहा जाता है। ये is much more for 20 amino acids। 20 अमीनो एसिड्स के लिए सिर्फ 20 कोडॉन्स नहीं, अब हमारे पास 20 अमीनो एसिड को दर्शाने के लिए 64 कोडॉन्स है। कौन सी? ट्रिपलेट कोडॉन्स है। इनमें से अगर हम पढ़ चुके हैं कि इनमें से 3 अगर लेस कर देते, कम कर देते, जिसे हमने स्टॉप कोडॉन, नॉनसेस कोडॉन, एंड कोडॉन, टर्मिनेशन कोडॉन कहा है, जो किसी भी डू नॉट स्पेसिफाई एनी अमीनो एसिड, जो किसी भी अमीनो एसिड को नहीं दर्शाता। तो ये 3 अगर 64 से कम भी कर लेते हैं फिर भी 61 अमीनो एसिड हमारे पास बहुत बड़ी क्वांटिटी, 61 ट्रिपलेट कोडॉन हमारे पास बहुत बड़ी क्वांटिटी में है, जो सिर्फ और सिर्फ 20 अमीनो एसिड को यू ही दर्शाते हैं या नेसेसरीली ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कंसीडर करते हैं कि 61 ट्रिपलेट कोडॉन हमारे पास है, तो जिसमें से शायद एक अमीनो एसिड के लिए 2 होंगे, किसी के लिए शायद 3 होंगे, तो किसी के लिए 4 ट्रिपलेट कोडॉन होंगे जो एक ही पर्टिकुलर अमीनो एसिड को दर्शाता है। अगर हमें इसे जानना है तो मे बी इन अ टेक्स्ट बुक ऑफ जस्ट न्यू सिलेबस ऑफ 12th स्टैंडर्ड ऑफ बायो,
मे बी ऑन अ पेज नंबर ऑफ द 81 पेज नंबर पे आपको डिक्शनरी दी गई है जेनेटिक कोड की, तो आप छोटा सा एक टेबल दिया गया है, उसमें आप पढ़ सकते हो वहां पर कितनी ट्रिपलेट कोडॉन कौन सी स्पेसिफिक कौन से अमीनो एसिड को दर्शाती है, ये भी उस जेनेटिक कोड की सीक्वेंस में किस तरीके से आएगा, और जेनेटिक कोड की सीक्वेंस में कौन सी ट्रिपलेट कोडॉन किस अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करती है, ये दिया गया है। इसके ऊपर से हम थोड़ा सा इसका बेसिक आइडिया समझ सकते हैं। सो in this way we have to just understood as the basic idea is about the protein synthesis. Thank you.